explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 1, and the name of the chapter is Number System, right? So यहाँ पर हम बात करने वाले हैं number system के बारे में. Let's see how they are first of all connected to our real life, right? कि हम इस number system को कैसे use कर सकते हैं. So let's see how it is done. सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, राइट different 4-digit numbers that you can make using the digits on the balloons. तो हमें कुछ 4 digits के नंबर बनाने हैं जो कि यहाँ हमें बलून्स में नंबर्स दिए गए हैं उन्हें यूज करके. So let's see, we can make a lot of numbers with them, just like 3, 5, 7, 2, 5, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, right? Then 5, 7, 3, 2, 7, 5, 3, 2, correct? And so on. Yes, we can make a lot of numbers. Then the next question, arrange the numbers in ascending order, right? तो now they are saying कि हमने जितने भी numbers बनाए हैं उन सभी को हमें जो भी numbers हमें यहाँ दिख रहे हैं बलून में उन्हें हमें ascending orders में arrange करना है. तो ascending order का मतलब होता है smaller to greater, करेक्ट. तो अब स्मॉलर टू ग्रेटर यानी कि सबसे छोटा नंबर हमें सबसे पहले लेना है जो कि है 2. देन 2 के बाद है 3, देन 3 के बाद है 5 एंड देन द नंबर इज 7, करेक्ट. नाउ दे से राइट द लार्जेस्ट नंबर फॉर्म. अब जो सबसे लार्जेस्ट नंबर बना है वो हमें लिखना है. लार्जेस्ट यानी कि जो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है उसे हमें सबसे पहले लिखना है. सो विच इज 7, देन 5, देन 3 एंड देन 2, करेक्ट. देन राइट द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म. अब जो सबसे छोटा नंबर है वो फॉर्म करना है. तो सबसे छोटा नंबर है 2, right? 2, then 3, and then 5, and then 7. Correct? Then write the difference between the largest and the smallest number. तो अब जो largest number है यानी कि ये और जो smallest number है यानी कि ये, इन दोनों के बीच का difference calculate करना है. So how we can do it is 7, 5, 3, 2 minus 2, 3, 5, 7. Correct? Let's write these largest and the smallest number over here. 7, 5, 3, 2 and 2, 3, 5, 7. And then subtract it. Right? तो subtract करेंगे तो we can't subtract 7 from 2, so we borrow 1 from here and then write 2 over here. So 12 minus 7 is 5. Then again we can't subtract 5 from 2, so we borrow 1 from here and write 4 over here. So it is 12 minus 5 is 7. Then 4 minus 3 is 1, right? And 7 minus 2 is 5. So hence we got the difference which is 5175. Yes? Next, moving ahead, we have the next topic which is introducing 5 and 6 digit numbers. तो अब बात करते हैं 5 और 6 digit numbers के बारे में.
ये सबसे पहले बता रहे हैं कि जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है वो है 9999, करेक्ट। तो अब अगर इसी 4 डिजिट नंबर में, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में हम 1 ऐड कर दें तो वो बन जाएगा हमारा 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, राइट। ऑल्सो दिस 5 digit smallest number is considered as 10,000, right? Then the largest 5 digit number is 99999, correct? अब इसी 5 digit largest number में अगर हम 1 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 1 lakh, right? जो कि सबसे छोटा 6 digit number है, the smallest 6 digit number, right? Also, it is known as 1 lakh or 10,000s and so on, right? Now, next thing that we are talking about here is the Indian number system. तो अब बात करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम की, राइट? ये आखिर है क्या? So, to write the number names of large numbers, we divide them into groups. कि अगर हमें नंबर नेम लिखने हैं लार्ज नंबर्स के तो हम इन्हें ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ पीरियड. हर ग्रुप को एक पीरियड कहा जाता है. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू ग्रुप नंबर्स. हमें ये सभी स्टेप्स फॉलो करने हैं अगर हमें नंबर्स को ग्रुप्स में बांटना है तो. सो let's consider the number 813756. तो हम ये नंबर कंसिडर करते हैं जिसे हमें ग्रुप में बांटना है. Let's learn how to group these numbers, right? Start from extreme right and make a group of 3 digits. कि सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर्स को राइट साइड से काउंट करना शुरू करना है और उसके बाद हमें लास्ट के राइट साइड से जो 3 डिजिट्स होते हैं उन्हें एक साथ ग्रुप करना है, राइट. दिस इज द फर्स्ट ग्रुप. ये फर्स्ट ग्रुप कहलाता है. इट कंसिस्ट ऑफ वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स एंड इज कॉल्ड द वंस पीरियड, राइट. कि इस ये जो 3 डिजिट का ग्रुप हमने बनाया है इसमें एक होता है वंस, एक टेंस और एक हंड्रेड्स प्लेस पर, और इन्हें हम वंस पीरियड के नाम से जानते हैं, करेक्ट. दिस ग्रुप इज नोन एज वंस पीरियड. देन द सेकेंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द नेक्स्ट 2 डिजिट्स. कि जो सेकेंड ग्रुप है उसमें अगले 2 डिजिट्स कंसिडर करते हैं विच इज 3 and 7, राइट. दैट इज 1000 and 10,000, जिन्हें हम 1000 और 10,000 के नाम से जानते हैं, और इट इज कॉल्ड द थाउजेंड्स पीरियड. और इस ग्रुप का नाम थाउजेंड्स पीरियड है. देन द थर्ड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द नेक्स्ट 2 डिजिट्स. कि जो थर्ड ग्रुप है उसमें बाकी के 2 डिजिट्स आते हैं. दैट इज लैक्स एंड 10 lakhs, राइट. जो कि लैक्स और 10 lakhs है. इट इज कॉल्ड द लैक्स पीरियड. इसे हम लैक्स पीरियड के नाम से जानते हैं, right? Now, thus 813756 is written as 81,37,546, right? इसीलिए हम इस नंबर को इस तरीके से लिखते हैं. Now, इन्होंने हमें टेबल के थ्रू दिखाया है कि कैसे इन्होंने नंबर्स को अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया है. सो यहाँ पर पीरियड्स के नेम है which is lakhs, thousands and ones. Then we have the number over here, right? So we start from the right side which is ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, lakhs and 10 lakhs. Clear? So उसी अकॉर्डिंग हमने नंबर्स पुट किए हैं और हमने राइट साइड से ही नंबर्स को टेबल में ऐड ऑन करना शुरू किया है. So it is 6, 4, 5, 7, 3, 1, 8. Clear? Now they are showing us some common error कि हम इन नंबर्स को लिखते समय या डिवाइड करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं. What are those errors?
नंबर नेम ऑफ 58,729 कि नंबर नेम्स जो नंबर नेम अगर हम लिखेंगे 58,729 का, सो हम क्या करते हैं 58,729 कि हम हंड्रेड्स लिखते हैं. वी आर नॉट सपोज टू राइट एस आफ्टर एनी ऑफ द पीरियड, राइट. हम उसे नॉर्मली 1000, 100 और जो भी लिखना है वही लिखेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू ऐड एस in any name of the period. Clear? Then we have one example over here, which is group the given numbers by separating them using commas. कि हमें इन सभी numbers को separate करना है commas का use करके. Also write the number names. और हमें इनके number names भी लिखने हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जो पीरियड के ग्रुप्स के नाम हमें दिए गए हैं इन्हें याद कर लेंगे, राइट. विच इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख, राइट. अब ये लर्न करने के बाद हमें इन नंबर्स को अगर कॉमास लगाने हैं और इनके नंबर नेम्स लिखने हैं तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है. कैसे? पहले हम यहाँ पर वो टेबल लिख लेंगे विच इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख. करेक्ट. अब राइट साइड से नंबर्स को इनके नीचे प्लेस करना शुरू कर देंगे विच इज 5, 7, 6, 2 एंड 8. करेक्ट. अब ये हमारा एक पीरियड था तो हमने 82 के बाद कॉमा लगा देंगे. सो इट इज लाइक दिस 82,675 और नंबर नेम्स में इसको लिखा जाएगा, इट इज रेड एज 82,675. क्लियर. देन सेम गोज विद द नेक्स्ट वन. इसी तरीके से हमने इसे टेबल में पुट किया विच इज 401, 8, 9 एंड देन 3. करेक्ट. सो यहाँ हमने कॉमास प्लेस कर दिए अलग अलग पीरियड्स के आगे एंड इट इज रेड एज 3,98,104. क्लियर. नेक्स्ट, नाउ वी हैव इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इंटरनेशनल नंबर सिस्टम नाउ. कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या है? सो in the international number system, larger numbers are grouped into 3 periods. कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जो लार्जर नंबर्स होते हैं वो 3 पीरियड्स में डिवाइडेड होते हैं. लेट्स कंसिडर द नंबर 287546. तो अब हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारे कुछ नंबर्स हैं जो कि हमें जिनमें हमें पीरियड्स लगाने हैं, राइट. So start from the extreme right and make a group of 3 digits. तो हमें extreme right side से शुरू करना है और एक 3 digits का ग्रुप बनाना है. This is the first group. ये हमारा पहला ग्रुप होगा. It consists of ones, tens and hundreds digit. ये ones, tens और 100 तीनों digit को include करता है जिसे कहते हैं ones period, right? Then the second group consists of the next 3 digits, that is thousands, 10,000s and 100,000s. It is called the thousands period. कि सेकेंड ग्रुप में भी हम 3 ही डिजिट्स को कंसिडर करेंगे जो कि होंगी 1000, 10,000 और 100,000, राइट. इट इज कॉल्ड द थाउजेंड्स पीरियड. इसे हम थाउजेंड्स पीरियड के नाम से जानते हैं. देन the third group consists of the next 3 digits, that is millions, 10 millions and 100 millions. कि जो थर्ड ग्रुप होगा उसमें भी हम 3 डिजिट्स कंसिडर करेंगे आगे की जिसे हम मिलियंस कहते हैं, राइट. मिलियंस पीरियड के नाम से जानते हैं जिसमें हम मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस को इंक्लूड करते हैं. करेक्ट. नो मोर डिजिट इज लेट इन द गिवन नंबर. अब इस नंबर में हमें और कोई डिजिट तो मिली नहीं थी इसलिए हमने मिलियंस पीरियड में कुछ भी नहीं लिखा है, राइट.
So 287546 is written as 287,546 and is read as 287,546. Clear? Then यहाँ पर सेम उसी तरीके से हमें टेबल बताया गया है जिसमें हमें एक जगह पीरियड्स, देन प्लेस वैल्यू और नंबर के जो डिजिट्स हैं उसे प्लेस किया गया है. सो पीरियड्स इसी तरीके से होंगे वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस. करेक्ट. देन अगेन वंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था विच इज वंस, टेंस एंड 100. थाउजेंड्स, 10,000s, देन 100,000s और उसके बाद आता है मिलियन. क्लियर. अब हम इसी नंबर को प्लेस करेंगे इस टेबल में विच इज 645,782. क्लियर. मूविंग अहेड वी हैव द एग्जाम्पल which says write 485,267 by putting commas according to the Indian and international number systems. कि हमें इस नंबर में कॉमास लगाने हैं इंडियन और इंटरनेशनल दोनों ही सिस्टम्स के अकॉर्डिंग और साथ ही साथ दोनों ही सिस्टम्स के अकॉर्डिंग उनके नंबर नेम्स भी लिखने हैं. तो सबसे पहले कॉमास की बात करते हैं कि हम कॉमास कैसे प्लेस करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम से और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से. करेक्ट. सो इंडियन सिस्टम से हमने देखा था कि हमें 3 ग्रुप लेना है, फिर 2 का और फिर 2 का. राइट. तो हमने यही किया है, 4 के बाद लगाया एंड देन 85 के बाद. राइट. देन अगेन इन द इंटरनेशनल सिस्टम भी लर्न कि हमें 3 की ग्रुपिंग करनी होती है, तो हमने 3 और 3 डिजिट्स की ग्रुपिंग आपस में की हुई है. अब इनके नंबर नेम्स कैसे लिखे जाते हैं, तो इंडियन नंबर सिस्टम में लिखा जाता है 4,85,267 और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 485,267. क्लियर. Then we have the topic which is place value and face value. So अब ये place value और face value क्या होता है ये जानते हैं. So it says the place value of a digit in a number represents the place or position at which the next topic that we have is place value and face value. Right? तो अब बात की जाए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की, तो ये क्या होते हैं, लेट्स फाइंड आउट. द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर रिप्रेजेंट्स द प्लेस और पोजीशन एट विच दैट डिजिट अपीयर्स इन द नंबर वेदर वंस और थाउजेंड्स. राइट. सो एक डिजिट का प्लेस वैल्यू दिखाता है एक नंबर में कि वो डिजिट कौन सी प्लेस पर है, क्या उसकी पोजीशन है. राइट. एट विच द डिजिट अपीयर्स इन द नंबर, जिस पर वो डिजिट जो है उस नंबर में दिखाई देती है, वेदर वंस और थाउजेंड. वो वंस या थाउजेंड कुछ भी हो सकती है. ऑन द अदर हैंड द फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट नंबर. वहीं दूसरी तरफ जो फेस वैल्यू है वो एक नंबर की एक्चुअल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो नंबर है वो खुद ही अपनी फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. राइट. कंसिडर द नंबर 625943. लेट्स डिटरमाइन द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट्स. अब हमने एक नंबर लिया है यहाँ पर समझने के लिए. अब हम इस नंबर की जो डिजिट्स हैं उसमें जो प्लेस वैल्यू हैं उनको बताएंगे. राइट. कि कौन सा डिजिट कौन सी प्लेस वैल्यू पर है. सो यहाँ पर हमें पीरियड्स दिए गए हैं, लाख, 10,000s एंड वंस. उसके बाद प्लेस वैल्यू है विच इज 10 lakhs, राइट. सॉरी, वी बिगिन फ्रॉम द राइट साइड विच इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, lakhs एंड 10 lakhs. क्लियर. अब उसके बाद कुछ नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं. राइट.
जो हमें नंबर दिया गया था उसी की डिजिट्स हमने राइट साइड से प्लेस करनी शुरू करी है, विच इज 3, 4, 9, 5, 2 एंड 6। करेक्ट। अब हम देखते हैं कि इनकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यूज को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले हमारे पास है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। 3 की प्लेस वैल्यू इज 3 और 3 ones। 4 की प्लेस वैल्यू इज 40 और 4 10s। 9 की वैल्यू इज 900। देन 5 की वैल्यू इज 5 into 1000, that is 5000s। 2 की प्लेस वैल्यू इज 20,000 और 2 10,000s। और 6 की प्लेस वैल्यू इज 6 lakhs और 6 lakh, राइट। नाउ बात आती है फेस वैल्यू की। जैसे मैंने बताया था, फेस वैल्यू सभी अपना नंबर अपनी फेस वैल्यू खुद ही बताते हैं। सो इट इज द फेस वैल्यू ऑफ 3 is 3, फेस वैल्यू ऑफ 4 is 4, फेस वैल्यू ऑफ 9 is 9, फेस वैल्यू ऑफ 5 is 5, फेस वैल्यू ऑफ 2 is 2, फेस वैल्यू ऑफ 6 is 6। क्लियर? देन राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। तो अब हम इन नंबर्स को लिखते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में, राइट। सो द नंबर्स आर द नंबर इज दिस, राइट। अब हमें इसे इसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इस चार्ट में प्लेस करना है। ऑब्वियसली हम लोग राइट साइड से शुरू करते हैं। जल्दी से राइट साइड से लिखना शुरू करते हैं। द राइट मोस्ट नंबर इज 6, तो 6 को हमने वंस के नीचे लिख दिया। 5 to be written under tens, 4 to be written under hundreds, 3 to be written under thousands, 2 to be written under 10,000s, and lakh to be written as 1 to be written under lakhs column. Correct? Then let's pick the last one, which is 1,46,527. So राइट मोस्ट साइड से शुरू करना है हमें। लेट्स राइट 7, 2, 5, 6, 4 and 1। करेक्ट। नाउ मूविंग अहेड, they say सानवी हैज जम्बल्ड अप नंबर नेम्स, कि सानवी ने नंबर नेम्स को जम्बल्ड अप कर दिया, यानी मिक्स अप कर दिया है। हेल्प हर मैच देम करेक्टली, जल्दी से उसकी हेल्प करते हैं ताकि वो इन नंबर्स को करेक्टली मैच कर पाए। 1 हैज बीन डन फॉर यू, कि एक हमारे लिए यहाँ पर किया गया है ऑलरेडी। सो जस्ट 52,806, तो 52,806 के साथ हमने इसे मैच किया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट इज 9,04,3। तो अब 9,04,3 को हम मैच करते हैं, विच इज here 9,04,3। Then 3,02,061. So here it is 3,02,061. Then 87,655. So it is 87,655. 5,06,207. So it is 5,06,207. Clear? Then next question says write numbers for the given number names and match them with the right ice cream. तो हमें यहाँ पर नंबर नेम्स दिए गए हैं और उनके नंबर न्यूमरल्स लिखने हैं और उसके बाद उन्हें इन आइसक्रीम से मैच करना है। सो 1 आइसक्रीम इज फॉर अ 5-digit नंबर and the another is for 6-digit number. तो जल्दी से इन्हें करते हैं और इनको आइसक्रीम्स के साथ मैच करते हैं। So it is 73,435. So it will be written as, सबसे पहले जब भी हमें ये करना होगा तो हम इन नंबर नेम्स को सॉर्ट करने से पहले we will write the chart over here, which is ones, tens, 100, 1000, 10,000, then lakh, right? So it is 73,000. हमने देखा lakh की तो कोई पोजीशन है ही नहीं,
तो 73 को 1000 के नीचे प्लेस करते हैं, 73,000। देन इट इज 435, तो 435 को हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, करेक्ट। देन नेक्स्ट इज 18,705। तो अब फिर से यहाँ पर कोई भी लैक वाली डिजिट है ही नहीं, सो अगेन वील राइट इट अंडर 1000 विच इज 18,705। क्लियर। सो हमने देखा कि दोनों ही नंबर्स में 5 डिजिट नंबर्स हैं, तो हम इन्हें 5 डिजिट नंबर वाली आइसक्रीम के साथ मैच कर देंगे, क्लियर। देन नेक्स्ट, सम डिजिट्स आर ट्रैप्ड इन केजेस हेयर। अब हम देख सकते हैं कि कुछ डिजिट्स यहाँ पर है जो कि केजेस में कैद हुई हैं, राइट। तो टू सेट देम फ्री वी नीड टू राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स, कि अगर हमें इन्हें नंबर्स को फ्री करना है तो इनकी प्लेस वैल्यूज और फेस वैल्यूज को बताना होगा। सो वो बताने के लिए भी हम सबसे पहले चार्ट लिख लेंगे, राइट, विच इज वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000, राइट। सो अब हमें कौन से नंबर की प्लेस वैल्यू बतानी है, 7 और 5 की। तो वी कैन सी कि 5 जो है वो 10,000 प्लेस पर है, तो हम इसे लिख देंगे 50,000, इसकी प्लेस वैल्यू है। और साथ ही साथ 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 7 टेंस, राइट, या फिर 70, करेक्ट। देन फेस वैल्यू दोनों की सेम ही होगी, विच इज 5 एंड 7, करेक्ट। देन मूविंग अप टू द लास्ट वन, इसमें भी हम टेबल लिखेंगे, विच इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैख। अब हमने देखा कि 1 जो है वो लैख के नीचे है, तो 1 लाख लिख देंगे इसकी प्लेस वैल्यू, और 2 की है प्लेस वैल्यू 2,000, करेक्ट। अब फेस वैल्यू की बात आएगी तो ये हो जाएगा 1 और 2, क्लियर। मूविंग अहेड, नाउ we are going to discuss about the expanded form और short form। तो अब बात आती है expanded form और short form की। So how it is done, let's see। So it says that in expanded form a number is written as the sum of the place values of its digits। कि एक्सपैंडेड फॉर्म में जो एक नंबर होता है वो अपनी प्लेस वैल्यूज का सम बनाकर लिखा जाता है, यानी कि उस नंबर में जितनी भी डिजिट्स होती हैं उन सब की प्लेस वैल्यू को लिखकर हम यहाँ पर उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। सो हमने एक नंबर लिया है विच इज 2,62,354। अब इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बिकम 2 lakhs प्लस 60,000 प्लस 2,000 प्लस 300 प्लस 50 प्लस 4, करेक्ट। सो ये बन जाएगी हमारी एक्सपैंडेड फॉर्म। देन अगर हम बात करें शॉर्ट फॉर्म की, तो शॉर्ट फॉर्म में जो नंबर है इट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ द नंबर। एक्चुअली जो नंबर खुद होता है, राइट, जो नंबर हमें यहाँ पर दिया गया है ये अपनी शॉर्ट फॉर्म कहलाता है, और जब इसी को हम एक्सपैंड कर देते हैं तो वो बन जाता है एक्सपैंडेड फॉर्म। वापस उसको उसी फॉर्म में लिखने को कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म, राइट। सो इट इज 2 lakhs प्लस 50,000 प्लस 300 प्लस 90 प्लस 4, सो इट बिकम्स 2,50,394, clear। Then next thing that we have is successor and predecessor। अब ये successor और predecessors क्या है, right? So it says successor means the number after or the next number। तो successor का मतलब होता है given number से आगे वाला नंबर, यानी कि just उसके बाद जो नंबर आता है वो उसे कहा जाता है successor। To find successor of a number
वी एड वन मोर टू द गिवन नंबर, कि अगर हमें एक नंबर का सक्सेसर निकालना है तो हम एक और ऐड कर देते हैं, वन ऐड कर देते हैं गिवन नंबर में, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल है, अगर हमें सक्सेसर निकालना है 30,541 का, तो हम उसमें वन ऐड करेंगे एंड द आंसर विल बी 30,542, जो कि हमारे नंबर का सक्सेसर कहलाएगा, करेक्ट। देन इज प्रीडेसर। प्रीडेसर मीन्स द नंबर बिफोर और प्रीवियस नंबर। प्रीडेसर का मतलब होता है पहले वाला नंबर या फिर जो नंबर हमें दिया गया है उसके जस्ट पहले वाला, राइट। टू फाइंड द प्रीडेसर ऑफ अ नंबर वी सबट्रैक्ट वन फ्रॉम द गिवन नंबर। अगर हमें प्रीडेसर निकालना है किसी एक नंबर का, तो उस नंबर में से हम वन को सबट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, the predecessor of 89,561 is 89,567 minus 1 is equal to 89,566. Clear? Next, we have the exercise which says write the expanded form of the following. तो हमें यहाँ पर इन सभी नंबर्स का एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है, जैसे कि यहाँ दिया गया है 4,63,730। तो इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं 4 एंड वी हैव 5 डिजिट्स आफ्टर इट, सो लेट्स प्लेस 5 zeros प्लस 63,000, then 6 we have, 6 के आगे we have 4 digits, let's place 4 zeros over here, then it is 3 के आगे we have 3 digits, let's place 3 digits over here, then it is 7 के आगे we have 2 digits, let's place 2 zeros, then 3 with 1 digit, 3 1 0 and then that's it, right? So इस तरीके से हम नंबर्स को एक्सपैंडेड फॉर्म में बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। देन राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इन नंबर्स की शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। सो हाउ इट इज डन, लेट्स पिक दिस वन। अगर हमें शॉर्ट फॉर्म लिखनी है तो हम इन नंबर्स को प्लस करेंगे। सपोज इट इज 20,000, देन 0, देन 600, देन 70 and then 5. Let's add them. So it is 5, 7, 6, 0 and 2. So the number becomes 20,675. Clear? Moving ahead. Now the question 3, they say write the successor and the predecessor of the following numbers. अब हमें इन गिवन नंबर्स का सक्सेसर और प्रीडेसर लिखना है। तो यहाँ पर नंबर दिया गया है 14,959। 14,959 में से अगर हम सक्सेसर निकालना है तो +1 करेंगे। ऑब्वियसली वी नो कि हमने सक्सेसर के लिए +1 करना है और प्रीडेसर के लिए -1, राइट। तो अगर हम +1 करते हैं तो इट वुड बी 9 + 1 10, 1 कैरी, देन 5 + 1 6, देन 9, देन 4 एंड देन 1. So it would be 14,960. Then we need to find out the predecessor. Predecessor के लिए in the same digit, from the same digit we are going to subtract 1, which is 9 minus 1 is 8, 5 is 5, then 9 is 9, then 4 is 4 and then 1 is 1. So it becomes 14,958. Clear? So इन सिंपल तरीकों से, सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके हम सक्सेसर और प्रीडेसर किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। Now moving ahead, we have the next topic which is comparison of numbers. अब हम नंबर्स को कंपेयर कैसे करेंगे, यानी उनकी तुलना कैसे की जाती है। So they say you already know how to compare numbers up to 4 digits, कि हमें पहले से ही पता है कि हमें इन 4 digits को कैसे कंपेयर करना है,
राइट हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि 4 डिजिट्स को कैसे आपस में कंपेयर किया जाता है. Let's now learn how to compare numbers with 5 और 6 digits. अब जल्दी से सीखते हैं कि हम कैसे 5 और 6 digits के numbers को भी compare कर सकते हैं. So, first of all we have compare of numbers with different number of digits. जहाँ पर अलग-अलग digits like अलग-अलग number होंगे digits के, right? Somewhere it is 5, 4, राइट तो अगर किसी नंबर में 5 डिजिट्स हैं और 4 डिजिट्स हैं तो हाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर देम दैट वी आर गोइंग टू रीड. सो इट इज इफ टू नंबर्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स द नंबर विद मोर डिजिट्स इज ग्रेटर. कि अगर दो नंबर्स में अलग अलग नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो जो नंबर है ज्यादा डिजिट्स वाला वो बड़ा माना जाएगा. सो इट इज कंसिडर द नंबर्स 1,34,791 and 8,264. Correct? The number of digits in 1,34,791 is 6. कि इस नंबर में हम देख सकते हैं 6 डिजिट्स हैं और वहीं दूसरे नंबर में 4 डिजिट्स हैं, राइट तो जाहिर सी बात है जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो नंबर बड़ा होगा. Hence we can say that 1,34,791 is greater than 8,264. Correct? Then we have comparison of numbers with same number of digits. अब अगर कहीं पे हमारे पास सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं दोनों ही नंबर्स में तो हम उन्हें कैसे कंपेयर करेंगे. सो इट सेज कंपेयर द फेस वैल्यूज ऑफ द लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स. कि हमें लेफ्ट मोस्ट यानी कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स की जो सबसे पहला नंबर है उसको कंपेयर करना है, राइट तो जैसे यहाँ पर हमें दो नंबर्स दिए थे, राइट विच इज 7,92,843 and the other one is 8,07,642. तो हम लैक्स वाले डिजिट को सबसे पहले कंपेयर करेंगे जो कि है 8 और 7 और हमें पता है कि 8 इज ग्रेटर देन 7 तो इसीलिए वी कैन से दैट 8,07,642 इज ग्रेटर देन 7,92,843. करेक्ट. Then next, they say if the face values of the digits at the lakh place are same. कि अगर face value जो है lakhs वाली digits की वो same है then compare the face values of the digits. तो हमें face value digits को compare करना पड़ेगा 10,000 place पे, right? कि अगर ऑलरेडी हमारी जो लैक्स वाले डिजिट है वो सेम है तो हम एक आगे वाली डिजिट पे जाएंगे, राइट और देन उसमें से जो बड़ा होगा वो हम ग्रेटर नंबर कंसिडर करेंगे. जैसे कि यहाँ पर था 7 और 7 लैक्स प्लेस पर दोनों सेम डिजिट्स हैं. अब आगे चलते हैं 1000 वाली पे जहाँ पर 9 और 6 हैं. तो वी नो कि 9 इज ग्रेटर देन 6 तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 7,92,843 इज ग्रेटर देन 7,63,240. क्लियर. Then, if the face values of the digits at the lakhs and 10,000 place are same, कि अगर face value digits की lakh और 10,000 place पर भी same है तो हम face value compare करेंगे 1000 place वाली digit की, right? फिर उनमें से जो greater होगा अब अगर हमारी जो फेस वैल्यूज हैं वो 10,000 के प्लेस पर भी सेम है तो वी आर गोइंग टू मूव ऑन द 1000 डिजिट्स और तब हम उन्हें कंपेयर करेंगे और पता लगाएंगे कि वेदर दे आर वेदर विच इज द ग्रेटर वन एंड विच इज द स्मॉलर वन, राइट. देन नेक्स्ट, if the face values of the digits at lakhs, 10,000 and thousands place are same, then compare the face values of the digits at the hundreds place. इसके बाद भी अगर हमारी डिजिट सेम है तो हम आगे वाली डिजिट्स पे जाएंगे. करेक्ट. एंड सेम ऑन वी आर गोइंग टू फॉलो द प्रोसीजर अंटिल वी फाउंड द ग्रेटर नंबर. करेक्ट.
Similarly, we can compare the face values of the digits at tens and ones place to know which number is greater. Correct? Next, ordering of numbers. अब हम देखेंगे कि numbers को कैसे order किया जाता है, right? How they are ordered. Correct? So it is numbers can be arranged either in ascending order, smaller to bigger, और डिसेंडिंग ऑर्डर बिगर टू स्मॉलर, कि नंबर्स जो है वो अरेंज किए जा सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि स्मॉलर टू बिगर, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बिगर टू स्मॉलर. करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल वी हैव दीज नंबर्स ओवर हेयर इन असेंडिंग ऑर्डर एंड दीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. एज वी कैन सी कि ये स्मॉलर टू ग्रेटर की तरफ अरेंज किए गए हैं और ये ग्रेटर टू स्मॉलर की तरफ. करेक्ट? Now moving ahead, we have the exercise which says put the correct sign. तो हमें यहाँ पर सही नंबर यानी ग्रेटर नंबर की तरफ साइन लगाना है. So be read कि हमें सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट डिजिट से कंपेयर करना है. This is 5 and this is also 5. तो कंपेयर करते हैं. अब we cannot identify क्योंकि दोनों ही 5 हैं. Moving on to the next digit which is 6 and 8. Now we can identify clearly that 8 is greater than 6. So hence we proved that 5816 is the greater one. Then moving ahead, arrange in ascending order. अब हमें इन numbers को ascending order में arrange करना है. So it is, let's take this one which has 7, 7, 7 and 7 at the leftmost place, right? Moving up to the next digit which is 0, 7, 7 and 0. Now we got to know that we have two zeros जो कि छोटे हैं but 7 is greater. तो 7 वाले digits बाद में आएंगे. पहले हम 0 की तरफ चलते हैं जो यहाँ पर 0 है और ये एक 0 है. अब we cannot identify in them also क्योंकि both are same. Moving up to the third digit which is 7 and 0. तो again we are going to see कि 0 जो है वो छोटा है तो we'll write this number first of all which is 7007. Then we are going to place this number which is 7077. Correct? Then we have 7 and 7 on both the places. Moving up to the next digit which is 7 and 0. अब we got to know that 0 is the smaller one. So we'll write 7707. Then at the last it is 7770. Correct? Then next question is arrange in descending order. अब इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है ग्रेटर टू स्मॉलर. करेक्ट? सो इट इज looking at the first digit very quickly which is 7, 7, 8, 8 and 7. We found three digits which are of 7 and 2 with the 8, right? तो 8 वाली greater है because we are going to write greater to smaller. So 8 में दोनों same है. Now looking at these two 8, we'll move to the next digit which is 3 and 5. 5 is the greater one, so let's write 5 over here which is 8503. Then it is going to be 8375. Then it is 7, 7 and 7. अब तीनों सेम है. Moving up to the next digit which is 0, 1 and 2. So 2 is the greater one. So we'll write 7219. Then 1 is less than 2. So it is 7128. Then the last is 7063. Clear? Next, moving ahead, we have forming the smallest and the greatest numbers. अब हमें
स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर्स को बनाना है. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट इज टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट 5 or 6 digit number from the given set of digits, arrange the digits in the ascending order. कि अगर हमें स्मॉलेस्ट 5 या 6 डिजिट नंबर बनाना है कुछ गिवन सेट ऑफ डिजिट्स में से, तो हमें डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, राइट? जैसे कि एग्जांपल है, हमें स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है इन नंबर्स को यूज करके. सो हम सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, विच इज 1, 2, 5, 7 and 9. So the smallest 5 digit number formed using the given digits is 1, 2, 5, 7, 9. अगर हमें गिवन डिजिट्स में से स्मॉलर नंबर बनाने के लिए बोला है तो हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे. टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ डिजिट्स, अरेंज द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अगर उसी सेट को यूज करके हमें एक लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो हम उन्हीं नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे. करेक्ट? जैसे कि एग्जाम्पल है, 5 डिजिट नंबर अगर ग्रेटेस्ट बनाना है इन डिजिट्स को यूज करके, जो कि है 3, 8, 2, 4 and 6, तो ये सभी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे. तो इट विल बी 8, 6, 4, 3 and 2. So the greatest 5 digit number formed using given digits is 8, 6, 4, 3, 2. Clear? Now we have some common errors जो कि हम इन नंबर्स को बनाते हुए कर देते हैं. Form the smallest 5 digit number using the following digit ones. कि हमें 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इन सभी डिजिट को सिर्फ एक ही बार यूज करके, राइट? तो हम 0 को सबसे पहले कभी भी प्लेस नहीं करते हैं, क्योंकि 0 अगर स्टार्टिंग में आ जाता है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है. तो इसीलिए हम 0 को सेकेंड प्लेस पर शिफ्ट कर देते हैं. तो इट विल बिकम 30,568. क्लियर? देन द टॉपिक इज राउंडिंग ऑफ द नंबर्स. अब हमें इन नंबर्स को राउंड ऑफ करना है. सो हाउ टू राउंड ऑफ दीज नंबर्स? लेट्स सी. इन आवर डेली लाइफ we come across many situations where we do not use the exact number of things but a rough estimate of that. कि डेली लाइफ में हम कुछ ऐसी सिचुएशंस में पड़ जाते हैं जहाँ पर हमें एग्जैक्ट नंबर की जगह उन नंबर्स का एक रफ आइडिया लेना पड़ता है, राइट? सो राउंडिंग ऑफ द नंबर्स मेक्स इट ईजियर टू वर्क विद देम. तो राउंडिंग ऑफ जो है वो एक्चुअली हमें ईजी कर देता है कि हम उन डिजिट्स के साथ आसानी से काम कर सके. It gives an answer which is close to exact answer. कि हमें एक ऐसा आंसर प्रोवाइड करता है जो कि उस एग्जैक्ट आंसर के बहुत ज्यादा करीब होता है, राइट? सो इट इज राउंडिंग ऑफ द नंबर्स कैन बी डन by looking at the digit on the right of the rounding place. कि जो राउंडिंग ऑफ है नंबर्स का वो किया जा सकता है जब हम डिजिट्स को राउंड ऑफ कर दें, राइट? बट वी मस्ट रिमेंबर 2 पॉइंट्स while राउंडिंग ऑफ द नंबर्स. पर जब हम नंबर्स को राउंड ऑफ करेंगे तो हमें इन 2 चीजों का ध्यान रखना है. सो इट इज इफ द नंबर इज लेस देन 5 वी नीड टू राउंड डाउन. कि अगर जो नंबर है वो 5 से कम है तो हमें राउंड डाउन करना है, यानी नीचे की तरफ. इफ द नंबर इज इक्वल टू और मोर देन 5 वी नीड टू राउंड अप. कि अगर नंबर जो है वो 5 ही है या फिर मोर देन 5 है तो हमें राउंड अप करना है. क्लियर? इन आवर सिलेबस वी राउंड अ नंबर टू द नियरेस्ट 10, 100 and 1000. कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम राउंड ऑफ करेंगे नंबर्स को 10, 100 और 1000 के आसपास तक, राइट? सो सबसे पहले सीखते हैं राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस. नंबर्स को कैसे राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टेंस, राइट? सो इट इज, लेट अस टेक नंबर 37. तो हम नंबर लेते हैं 37. टू राउंड 37 द नियरेस्ट 10 we have to see whether it is nearer to 30 or 40, right? कि जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे
तो हम ये देखेंगे कि ये 30 के पास है या फिर 40 के। तो 30 हमने यहाँ लिखा, 40 यहाँ लिखा और एक नंबर लाइन बनाई जिस पर हमने देखा कि 7 जो है वो 40 के पास है, करेक्ट। तो इसीलिए जो राउंड ऑफ होगा 37 का वो होगा 40, क्लियर। देन वी हैव राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। अब राउंड ऑफ करते हैं नंबर्स को हंड्रेड्स के आसपास। So it is let us take 582 and see its position on the number line. अब हम 582 लेते हैं और इसको 100 के आसपास जब हम करेंगे तो we will have 500 on the one hand and 600 on the other. 582 कहीं यहाँ आएगा तो obviously ये 600 के पास है तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 600. Same goes with the rounding of the numbers to the nearest thousand. दो thousands के बीच में अब हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो thousands के लिए जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो we'll see कि नंबर लाइन पर 7000 और 8000 होंगे दोनों एंड पर, और 7265 कहीं 7000 के आसपास है तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 7000, क्लियर। देन मूविंग अहेड we have an exercise. Let's see what it says. Round off the following numbers to the nearest 10. अब हमें इन्हें 10 के अराउंड जो है राउंड ऑफ करना है। So let's see how it is done. So ये है 35,461. तो अगर हम 10 के आसपास राउंड ऑफ करेंगे तो it would be 35,460 एक एंड पर और दूसरे एंड पर होगा 35,470. अब 67 जो है वो यहाँ 7 के यहाँ कहीं लाए करेगा तो इसका राउंड ऑफ होगा 35,470, क्लियर। देन राउंड ऑफ द डिजिट नंबर round off the 5 digit numbers to the nearest hundreds and 6 digit numbers to the nearest thousand. तो अब हमें 5 डिजिट नंबर्स को हंड्रेड्स के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है और 6 डिजिट वाले नंबर्स को 1000 के। तो 5 डिजिट नंबर है ये, तो 5 डिजिट को पहले 100 के राउंड करते हैं। सो इट इज 94,103. सो 100 से अगर हम करेंगे तो 3 डिजिट्स यानी कि 94,100 और यहाँ आएगा 94,200. Obviously it is more near to the 94,100, तो इसको हम लिख देंगे 94,100, करेक्ट। उसके बाद एक 6 डिजिट का नंबर लेते हैं जो कि है 8,52,715. तो 8,52,715, राइट। सो अब इसे हमें करना है 1000, तो इट इज कि यहाँ पर आएगा 2000 और फिर आएगा 3000, राइट। अगर हम ये 4 डिजिट लेते हैं तो 27 कहीं यहाँ पड़ेगा तो ऑब्वियसली इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 53,000, क्लियर, 53,000, करेक्ट। देन circle the numbers that would round off up to the nearest hundreds to give us the number in box. तो अब हमें हंड्रेड्स के अराउंड इन नंबर्स को राउंड ऑफ करना है और जो भी नंबर इन बॉक्सेस में राउंड ऑफ इन बॉक्सेस में दिए गए नंबर्स को राउंड ऑफ करेगा उसको हमें लिखना है। सो 100 के अराउंड अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो इट इज 109, 117 एंड 205. तो 200 के सबसे पास है 205, करेक्ट। बट क्योंकि ओके यस, सो इट इज 205, सो हम इसका राउंड ऑफ ले लेंगे 83,205, क्लियर। देन द नेक्स्ट वन इट इज 12,800. तो 12,800 के सबसे पास होगा 12,819, करेक्ट। तो हमारा नंबर हो जाएगा ये, क्लियर। देन फॉर्म द स्मॉलेस्ट and the greatest 5 and 6 digit numbers using each of these digits only once. कि हमें 5 और 6 digit के numbers बनाने हैं, smallest और greatest, right?
लेट्स सी फर्स्ट विद द फर्स्ट वन हम कैसे बना सकते हैं. तो स्मॉलेस्ट के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना है. तो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा 1 2 3 5 एंड 9. ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट. और ग्रेटेस्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर विच इज 9 5 3 2 1. क्लियर. नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज रोमन नंबर्स. सो अब ये रोमन नंबर्स क्या है, लेट्स फाइंड आउट. सो द नंबर्स दैट वी यूज टुडे लाइक 1 2 3 4 आर कॉल्ड हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. कि इन नंबर्स को जिनको हम आज यूज कर रहे हैं इन्हें कहा जाता है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. क्योंकि ये नंबर्स इन्वेंट किए गए थे इंडियन से एंड वर कैरीड टू यूरोप बाय द अरब्स. और ये सभी यूरोप में लेकर जाए गए थे बाय द अरब्स थ्रू ट्रेड. राइट, अरब्स इसे यूरोप लेकर गए थे ट्रेड के लिए. Many years ago in Europe another number system existed. बहुत सालों पहले यूरोप में एक दूसरा नंबर सिस्टम आ गया. This number system was invented by Romans. कि ये नंबर सिस्टम रोमन्स ने ही इन्वेंट किया था and was completely different from the Asian numerals. और ये बिल्कुल अलग था एशियन न्यूमरल्स से. These are called Roman numerals. इसीलिए हम इन्हें रोमन न्यूमरल्स के नाम से जानते हैं. करेक्ट. Then we have a point to remember which says there is no symbol for zero in Roman system. कि रोमन सिस्टम में जीरो के लिए कोई भी सिंबल नहीं है. राइट. नाउ unlike Hindu Arabic number system, the Roman numeration system uses only 7 symbols. कि हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम की से हटके रोमन न्यूमरेशन सिस्टम जो है उसमें सिर्फ 7 सिंबल्स का यूज होता है. These symbols with their respective values are. तो ये सिंबल्स हमें उनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिए गए हैं. राइट. सो इट इज 1 V as 5 X as 10 L as 50 C as 100 D as 500 and M as 1000. Right? So Roman numerals from 1 to 40 are given below. तो हमें यहाँ पर ये 1 to 40 तक के रोमन न्यूमरल्स दिए गए हैं. करेक्ट. नाउ मूविंग अहेड वी हैव सम रूल्स फॉर राइटिंग. सो यहाँ पर हमारे पास कुछ रूल्स हैं फॉर राइटिंग द रोमन न्यूमरल्स. राइट. तो देखते हैं कौन कौन से रूल्स हैं वो जिन्हें हम यूज करते हैं रोमन न्यूमरल्स को लिखते हुए. So just listed below are the rules for writing numbers. So they are rule number 1, writing a smaller numeral to the right of a larger numeral represent addition. Right? कि अगर हम किसी भी छोटे नंबर को किसी बड़े न्यूमरल के बाद लिखते हैं तो वो एडिशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी वो नंबर उसमें ऐड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल 7 is equal to 5 plus 1 plus 1. So is equal to V plus V1 1. 26 10 plus 10 plus 5 plus 1. X X V1. Correct? Then next we have rule number 2. अब बात की जाए rule number 2 की. So it is writing a smaller numeral to the left of a larger numeral represents subtraction. कि अगर हम एक स्मॉलर न्यूमरल से पहले यानी कि उसके लेफ्ट साइड पे एक छोटा नंबर लिखते हैं तो दैट मीन्स वो हमें सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे कि एग्जाम्पल है 9 is equal to 10 minus 1, so is equal to 1x. 34 is equal to 30 plus 5 minus 1, xxx minus 1v. Right? In general, if a smaller number appears after a larger number, the values are added. तो नॉर्मली अगर हम बताएं कि अगर कोई छोटा नंबर लार्जर नंबर के बाद में है तो हम उसे ऐड करेंगे और अगर उससे पहले है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. करेक्ट. देन वी हैव रूल नंबर 3. It says
I, X and C and M may be repeated at most 3 times in a numeral. कि एक न्यूमरल को लिखते टाइम ये सभी डिजिट्स सिर्फ 3 बार रिपीट की जा सकती हैं, 3 बार से ज़्यादा हम इन्हें रिपीट नहीं कर सकते हैं, राइट? Then is rule number 4. So it says V, L and D can be used only once in a numeral, right? कि V, L और D जो है वो सिर्फ एक ही बार न्यूमरल में यूज किए जा सकते हैं, करेक्ट? सो इट इज कॉमन एरर जो हम यूजुअली कर देते हैं गलतियां, जिस 12 को हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, 1 को हम आगे पीछे नहीं बल्कि आगे प्लेस करेंगे, राइट? 40 हम 4x नहीं लिख सकते हैं बिकॉज जो एक नंबर है वो सिर्फ 3 ही बार मैक्स रिपीट किया जा सकता है, तो 40 विल बी रिटन एज x and L, राइट? Now we have the exercise. Write the following in Roman numerals. जल्दी से इन सभी को रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं. So सबसे पहले we have 74. तो 74 लिखा जाएगा 50, 60, 70 and then 4 like this. Correct? Then we have 163. So 100 हम रिप्रेजेंट करते हैं C को यूज करके, 60 का रिप्रेजेंट करते हैं L and X और 3 को लिखते हैं 1, 1, 1. करेक्ट? मूविंग अहेड. नाउ दे से राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. अब इन नंबर्स को हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखना है. लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस. सो लेट्स टेक दिस वन विच इज X, C and V. सो XC का मतलब हो गया 90 and V मतलब हो गया 5. Then take this one which is 50 plus 20, it is 70 and V plus 1, that means 5 plus 1 is 6, 76. Clear? So now let's see the chapter at glance कि हमने इस chapter में क्या क्या सीखा. So it says place value of a number represents the place or position at which that number appears. कि place value एक number का represent करता है, place या फिर position जिस पर वो number actually appear होता है यानी दिखाई देता है. Face value of a number represents the actual value of that number. कि उस number की जो face value है वो actually actual value उस number की represent करता है. When we write a number as the sum of the place value of all its digits, it is called the expanded form. कि जब हम एक नंबर की सभी प्लेस वैल्यूज को एक सम बनाकर लिखते हैं तब उसे एक्सपैंडेड फॉर्म कहा जाता है. When we write the face value of each digit in its correct place, it is known as the standard form. पर जब हम उसी डिजिट को उसकी फेस वैल्यू में लिख दे वापस से तो वो उसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाती है. The successor of a given number is the number that comes just after it. कि एक नंबर गिवन नंबर के बाद जो नंबर आता है वो उसका सक्सेसर कहलाता है. The predecessor of a given number is the number that comes just before it. तो एक नंबर जो कि उस गिवन नंबर के बिल्कुल पीछे आता है उसे प्रेडेसर कहा जाता है. Arrangement of members from the smallest to the greatest is called ascending order. कि अगर हम अरेंज करते हैं नंबर्स को एक सीरीज में जो कि होती है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, उसे कहा जाता है ascending order. Arrangement of numbers from the greatest to the smallest is called descending order. कि अगर अरेंजमेंट किया जाए नंबर्स को ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की सीरीज में तो उसे कहा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर. If the digit to the right is 1 to 4, you round down. If the digit to the right is 5 to 9, you round up. कि अगर डिजिट है 1 to 4 के बीच में तो हम उसे राउंड डाउन करते हैं और अगर डिजिट 5 to 9 के बीच में है तो हम उसे राउंड अप करते हैं. There are 7 symbols in the Roman numeral system to write numbers. कि रोमन न्यूमरल सिस्टम में 7 सिंबल्स होते हैं जिनको यूज करके हम नंबर्स को लिख सकते हैं, राइट? सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. I hope you all enjoyed it and you all got the concepts really well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.